सर माइक ऑफ है आपका। Yes, sir. Look better. Okay. I'm audible, right, beta? Yes, sir. Hello. Okay. So in already we have gone through with the introduction of the rapid prototyping. Now we'll see the first module of the rapid prototyping. First module is contain the first important part is what new product development process. Okay. Yes. Anyone is having the, any idea regarding the new product development? Yes. You see, these terms are very basic terms, but all terms are very important in terms of the industries, because every industry is gone through with their new product development department. There's a specific department is there. That department name is a research and development or design and development department. That design and development department is take care of the all the new products. Okay, so if any company is thinking to launch the new product, so they are going to be a with their design and development department. So what is the role of their design and development department? How we can define the new product development process or new product development? Yes, anyone can define the new product. What is the meaning of the new product? Yes, can you define the new product? Yes, anyone? What is the new product? I'm audible, right? Okay. So Yes, sir. new product, yeah, new product development is nothing but the development of the original product, product improvements, product modification, and new brand through their firms and own research and development efforts. Okay. So जितना भी अभी तुम देखोगे कि अभी इसमें रैपिड प्रोटोटाइपिंग का क्या रोल. So when we are talking about the rapid prototyping, कभी picture में आता है when you are going to form the something new. Okay, so if you're thinking to make the new shape of the automobile, okay, so if you're going to form the new shape of the automobile, so directly you're not going to be manufacture the aerodynamic shape of the body. First we'll go and make the models. That is nothing but the one type of virtual prototyping. So virtual prototyping we are making on the CAD software. Sometimes we are making the physical prototyping with the functional prototyping. That functional prototyping we are making with the actual material, but that size is small. Okay, so when it's rapid prototyping will come in picture when you are going to produce the any new product. Okay, new product है then only we are going to make the prototype. यदि नहीं है तो prototype बनाने की क्या जरूरत है जो already market में है. Okay, so when you are going to create or modify or uh, किसी का रेफरेंस लेके you are just trying to improve the product और जो product तुम्हारा खुद का है and you are trying to improve that product, so such product is called the new product development. So why it is necessary? So एक basic फंडा होता है. Is suppose that if any industry is running with the one product, okay, so what is the chances of success of that industry? Yes, anyone? If you have if you have your own industry and you are producing the only one type of the vehicle or one type of mobile or any one type of the things, so what is the possibilities of your success? Yes, anyone? See, this is a very general and very industrial perspective. So already you are facing the same things in your daily life कि भैया मुझे क्यों एक्स्ट्रा चाहिए. तुम बोलते हैं यार इसमें थोड़ा सा ऐसा होता था तो चल जाता था. So why we have needed this R&D department in industry? तो सबसे पहले उसका आंसर चालू कहाँ पे होता है कि why we have needed to improve our product, why we must have this R&D department in our own industry. So सबसे पहले क्या आता है कि भैया एक ही प्रोडक्ट यदि मैं अपने कंपनी में बनाता हूँ तो what is the possibilities of success? Then its possibilities is very less. Means you're 100% depend on that product. If you are depend on the 100% on that product, if that product is going to be in a fluctuation form, then also you are going to be in a big loss. So if you're going to observe any industries or automobile industry, biscuit industry, mobile industry, any industry, they including the umbrella industry, that is a seasonal product, but they are producing the umbrella in a different shape and different size, different colors. Why they are doing this one? They are targeting their different customers. So this R&D department is directly collected.
So every customer needed this only when we need to take care of this industry development. So industry development is possible only when you are going to R&D department is needed, dependent on the customer requirement. इंडस्ट्री का खुद का ओन सक्सेस के लिए, ओन इम्प्रूव के लिए वी हैव नीडेड दिस वन. सो इसमें करते क्या है बेसिकली वी आर टेक केयर ऑफ द डिफरेंट फंडामेंटल. हम लोग क्या करते हैं, यदि एक ही लगा है तो हमारा प्रॉब्लम होगा. यदि हम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट रन करते हैं, सो क्या होगा, कस्टमर ज्यादा रेंज के यू कैन अट्रैक्ट. एंड it doesn't mean if you have a number of the product, then also your industry continuously improvement is required in that product. So to make that continuous product improvement, we have a 3 to 4 sections. Okay, that 3 to 4 section is nothing but the handled by the R&D department. R&D department is going to be handle the first product, उसका improvement क्या हो सकता है, second product उसका improvement क्या हो सकता है. It is handled by this. अभी तुमने very small industry, that is a biscuit industry. You can find out कि अभी यार जो पहले क्रीम बिस्किट आता था, फिर क्रीम में वो जो क्रीम है उसको बिस्किट में इंसर्ट करके यूज करने लगे, फिर उसको चिप फॉर्म में इंसर्ट करके बिस्किट में यूज करने लगे, फिर सम टाइम हैंड मेकिंग आने लगा. तो ये कौन कर रहा है? Who is performing this? This all is performed by the R&D department. They are doing the changes and they are testing that part. So this all are the new product and generated by this R&D department. So when you are going to see in an automobile industry, so different cars is there. Mobile is different mobiles are there. Okay, so every time we need to take care of this R&D department, and R&D department का सिर्फ एक ही काम है to produce the new product or modify your current product. Okay, so after that if you are going to see a NPD का categories क्या है. So first new product development किसको बोल सकते हैं? If you are new product you are producing, so that's also is the new product कि भैया जो product है तुम्हारा उसको तुमने नया product you are launching in a world. Second, new to the product line, जो तुम्हारा ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, मतलब ऑलरेडी जो था, and you are just changing the things. You are changing the things. So that is also called the new product line. Means already हमने मोबाइल का सब चीजें सेम रखा है and we are doing this some changes in that one. तो हमारा जो प्रोडक्ट लाइन था, जो प्रोसेस लाइन है, we are changing with the addition of the same thing or subtraction of the same things. That is also a new product development. Because every time यदि तुमने as an engineer, if you observe that तुम तो mobile, everyone is using the mobile. Okay, so mobile का every time we are going to, what is the base variant, what is the mid-range variant and a higher variant. Every company is launching in a 3 different variant. एक ही वेरिएंट क्यों नहीं, ठीक है ना, 256 and something 8GB 256 का रहने दो. But why they are launching with the 4GB 64, 4GB 120 and again. So this is a very important part if you are going to talk about the new product, because if new product is in a different range, it means you will get the new customers. New customer you can target. थोड़ा सा चेंजेस करके प्रोडक्ट में मॉडिफाई करके अगेन यू आर ट्राइंग टू टारगेट द पीपल्स. इफ यू ऑब्जर्व दैट बिस्किट का रैपर चेंज करके यू आर ट्राइंग टू टारगेट द पीपल. सो दिस इज व्हाट यू आर चेंजिंग दिस सम प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन वर्क यू आर चेंजिंग इन योर प्रोडक्ट. तो यदि तुम प्रोडक्शन लाइन में, प्रोडक्ट लाइन में चेंज करते हो, दैट इज आल्सो एनपीडी. नेक्स्ट वन इज ऑल्सो प्रोडक्शन लाइन को चेंज करके तुमने अपना इंप्रूवमेंट किया, या इंप्रूवमेंट इज ऑलरेडी ओल्ड वाला जो है रिवीजन, उसको तुमने एग्जिस्टिंग वाले को चेंज करके किया, या एग्जिस्टिंग वाले को चेंज करने के साथ कुछ ऐड कर दिया. दिस ऑल विल कम अंडर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरीज. सो ओनली नया मार्केट में कुछ बना के लाना इज नॉट ओनली एनपीडी. एनपीडी मीन्स व्हाट करंट वाला है, करंट में भी तुमने कुछ चेंजेस कर दिया, कुछ ऐड कर दिया या कुछ मॉडिफाई कर दिया. That's also called the new product category. If you're going to see the automobile, so automobile का body का shape पता चला, बाकी सब specification same, but we are saying कि भैया ये मॉडल ये है, ये मॉडल ये है. Why? Because it's come under the new product development. With that we are targeting the customer. Okay,
So every time this new product development is playing a very important role in industry, and this NPD is going through with their prototype. Okay, what is the need of new product development? To maximize the profit. यदि वही पुराना घिसा पिटा लेके चलते रहोगे, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करोगे, what is example of this NPD? कौन फेल हुआ इस NPD में? If you have know that Nokia, if we are very familiar with the mobile industries, आज बहुत सारे I think 130-40 industries, mobile industries are in India. तो उसमें एक टाइम था कि we had only Samsung, Nokia और थोड़ा बहुत इधर उधर का Motorola I think. But nowadays, no one is ready to accept this Motorola. Sorry, Nokia. Nokia is no one ready to accept now Nokia. Nokia का कुछ भी सेलिंग चालू नहीं है. But it's very less. वो भी ये हुआ. Second thing, जो भी कैमरा यूज करते हैं, DSLR कैमरा यूज करते हैं, उसका भी तुम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखोगे तो किधर से चालू हुआ था? एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया? बिकॉज सी दिस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज टोटली डिपेंड ऑन द केस स्टडीज. आफ्टरवर्ड वी सी द केस स्टडीज. बहुत सारा केस स्टडीज है, वॉच का केस स्टडी है, पेप्सी कोला का है. तो सिमिलरली वी नीड टू टॉक अबाउट वन मोर केस स्टडी कि भैया नीड क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. इफ यू रिमेंबर दैट अर्लियर, वो जो तुम्हारा कैमरा आता था कन्वेंशनल कैमरा, उसके लिए तुम रील लेते थे. रील लेने के बाद उसके बाद कैमरा, और उसके बाद रील होने के बाद उसको डेवलप करने का. यस, आई एम राइट? यस हेलो, सर. आई एम ऑडियो? या. अब उसमें सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि उस समय कौन से कंपनी का हम कैमरा यूज करते थे, कौन से कंपनी का रोल यूज करते थे, और कौन सा पेपर यूज करते थे जिसपे प्रिंट करना रहता था, कौन से कंपनी का? यस, एनीवन? कोडक. हैव यू हर्ड दिस वर्ड कोडक? था क्या ऐसे कोई यस कंपनी? सर, कोडक प्रोडक्ट. हाँ, कोडक जो कंपनी था, they are selling their camera as very cheapest rate. This is very important case study. They are selling their camera at very cheapest rate. सिर्फ सस्ते में बांट देते थे, सस्ते में ले लो, 1000 रुपए में भी तुमको कैमरा मिल जाएगा. बट you need to spend more money on the roll, and after that that paper, जिस पेपर पे तुम डेवलप करने वाले. So their earning is not related to that camera, because they are producing all three categories of requirement: camera, roll and papers. So they are targeting maximum profit on these two, roll and paper. They are not targeting the money on the, they are not targeting the profit on the camera. Why? अरे एक बार कैमरा ले लिया तो रोल तो खरीद के पेपर रोल लेगा, रोल का फोटो निकालेगा, फिर बोलेगा अरे फोटो निकाल लिया तो डेवलप तो करेगा, तो डेवलप करने के लिए पेपर लगेगा. ओके, सो दे आर वेरी माइंड सेट. उनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, दे आर वेरी इफेक्टिव एंड दे आर टारगेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन दिस टू वेज. बट आफ्टर सम टाइम उनका इतना व्हील पावर था, जो सेम प्रॉब्लम नोकिया के साथ हुआ, सेम प्रॉब्लम, इतना व्हील था उनका. क्या था टारगेट? कि देखो भाई, दुनिया में और कुछ भी आ जाने दो, लेकिन जो फोटो का हाथ में लेके इफेक्ट होता है फोटो देखने का, पेपर पे प्रिंट हुआ रहेगा और उसको देखने का जो एक इफेक्ट और मैजिक रहता है, वो कोई भी उसको कम्पीट नहीं कर सकता. एक ऐसा कोडेक का एक इमेज बन गया था कि हमको कुछ भी होने, हमारे इंडस्ट्री को कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ऑलरेडी पब्लिक को फोटो वाला, पेपर वाला ही फोटो चाहिए. ओके, फोटो शुड बी प्रिंटेड ऑन द पेपर ऑन. ओके, ऐसा वाला ही इमेज दिमाग में क्रिएट हो गया था. तो उन्होंने क्या किया, उनके इधर का ही R&D डिपार्टमेंट, कोडेक का ही R&D डिपार्टमेंट इज इन्वेंटेड फर्स्ट डिजिटल कैमरा. क्योंकि दे है वो कोडेक का ही सबसे ज्यादा कैमरा चलता था, एंड उनके यहाँ पे ही R&D डिपार्टमेंट ने फर्स्ट डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया. बट उसको उन्होंने डिनाई किया, बिकॉज उनको ये पता था कि मैक्सिमम प्रॉफिट इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस टू, और पब्लिक को डिजिटल चलेगा नहीं, डिजिटल इसके ऊपर डिपेंड नहीं होने वाले हैं. तो डिजिटल के ऊपर आगे R&D करके इसको इंट्रोड्यूस करने में हमारा कोई फायदा नहीं है. सो दे हैव स्क्रैप दैट आइडिया. बट दोज पीपल आर वर्कड ऑन दैट, दे हैड शिफ्टेड टू, एंड देयर अप्रोचेस टू अदर
कैमरा कंपनीज, कैनन वगैरह जो भी तुम्हारा है, they are start making and producing this digital cameras. तो उनका मार्केट इज स्टार्ट अपिंग एंड कोडेक इज स्टार्ट डाउन. So again, R&D department was very strong, but no one is able to maximize their profit with their digital. कि चलो डिजिटल भी चलने दो और ये भी चलने दो. We need to shift that. We need to approach the new thing in a market. They are not. They are very conventional. हमारा ये चल रहा है, हमको इसके साथ ही आगे करना है. So they are not ready to capture the all types of the market. डिजिटल भी कैप्चर करेंगे, ये भी कैप्चर करेंगे, ऐसा उनका माइंड नहीं था. सेम विथ हैपन विद द नोकिया. They are ready to produce only Java phones, Symbian phones. Their software was running on their Symbian and Java. They are not ready to accept the Android. और थोड़े टाइम में बाद में क्या हुआ कि वो Symbian करते रह गए, and Java is start boosting, and Samsung and other brands is with their Android. तो उनका हो गया, बाद में इनका मार्केट क्लोज हो गया. आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट अप्रोचिंग द माइक्रोसॉफ्ट. मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का क्या है, ये चीजें उनके डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट ने वर्क ही नहीं किया. मार्केट ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके हिसाब से अपने को अपना डेवलप करना है, उनका वो डिपार्टमेंट चलाए. बिकॉज ऑफ दैट देयर इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी अ कोलैप्स. ओके, सो वी नीड टू वर्क ऑन द एनपीडी डिपार्टमेंट फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट टू कैप्चर द लार्ज मार्केट. कंपटीशन को, जो तुम्हारा कंपटीशन है मार्केट में, उसको भी क्रॉस करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए we need to work on the NPD department. Very important department is NPD. Full thing is depend on the NPD, on the new product development department is, जिसको हम लोग R&D department भी बोलते हैं. See, new product, yes, new product development strategies. अभी क्या होता है, we know that, अरे आज कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट लेके आए तो उसका कितना सक्सेस होने का चांसेस है. Yes, failure chances will be very high, because what you are producing, what you are introducing, that is a totally new. तो पता चला पहला दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप टेस्टिंग के टाइम पे फेल हो जाएगा. अगेन यू नीड टू इम्प्रूवमेंट. सो दिस इज वेरी बिग साइकिल व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एनी न्यू प्रोडक्ट. सो न्यू प्रोडक्ट साइकिल इज द फर्स्ट साइकिल ऑफ एनी इंडस्ट्री कि भैया इसके बेस पे ही बाकी सब चीजें रन करने वाला है. If they are not going to target the good thing, they are not able to approach the problems. So new products suffer from the higher failure rate. New product can be obtained by the development acquisitions. जो भी है नया प्रोडक्ट, जब तक कोई उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, you are not going to get the new product develop. आज के टाइम पे तो सबसे प्रॉब्लम है कि तुम अपना न्यू प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट भी है, you need to do a patent. कंसेप्ट को भी पेटेंट करना पड़ता है. ये तो पता चला कि कंसेप्ट भी चोरी हो जाता है. Work is further part. Development research is further part. What concept you have, वो कितना possible है, people don't know, but they are patenting, they are registering their concepts. Okay, so this NPT strategies is directly affect their industry benefit growth. तो हमारा जो डिपार्टमेंट है अब इसमें आता है सबसे ज्यादा कि when you are going to make the NPD, so NPD में क्या क्या बड़े बड़े रोल प्ले करने वाला है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अभी एक आदमी का काम तो नहीं है कि चलो आज नया कुछ लेते हैं और बना डालते हैं. सो दिस इज अ वेरी बिग साइकिल. ओके, सो अगेन दिस बिग साइकिल इज डिपेंड ऑन दिस पैरामीटर: न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, commercialization, beta testing and market testing, technical implementation, idea generation. So this is a one cycle where we need to work on the new product development. That new product development again is maybe a modification of your older one, or it may be a modification of the older, or it may be a production generation of the new product. चाहे कुछ भी रहने दो, we need to go with this cycle. Without this cycle, we are not able to produce any new product. Okay. Now, strategies जो हमने पहला बात किया, first is nothing but the idea generation and screening. Ideas generation and screening is very important. First step of the new product development. Second stage is nothing but the concept development and testing. Third, market strategy. Fourth,
business analysis, fifth, product development, test marketing, commercialization, and this is the pure workout. When you are going to see this graphical representation, so you can find out the new product development process is nothing but the conical shape. Why we are saying the conical shape? आइडिया तो बहुत दिमाग में आता है, आइडिया तो बहुत सारे दिमाग में आता है कि वी कैन डू दिस वन, 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 बट how many ideas is going to convert into new product? When you're going to attend any meeting, then everyone produce and everyone present their own ideas. Nowadays, few governments and few firms are started their idea platform where you can produce your idea and they will finance you. Okay, so everywhere people are presenting their ideas, and for that ideas kitna idea convert hota hai, then you can see the ratio. At the first, that is the number of ideas, and the bottom you are getting the, at the bottom at this stage you are getting the product. Okay, so here you can see there lots of ideas is there, but after going to this cycle, you can see here कि भैया यहाँ पे तो मेरा ideas बहुत था, and here we have converted only one idea to the actual product. एक ही idea को convert कर पाए. Why this is happening? ऐसे बोलते हैं तुम लोग का ही बहुत दिमाग चलता है, बहुत सारे आइडिया लेके आते हो, बट that idea should be feasible, that idea should be implemented होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. So what idea you have, that all ideas is going to be this category, this process, and if that is having the weightage, then they are good, it is going to be converted into a required things. Yes, anyone is having any doubt regarding this, then they can ask, please. Yes, anyone? Anyone? No, sir. Okay, ठीक है, चलो. Now, if you are going to see here, this all products जो भी है तुम्हारा, ये यदि हम उसको देखने जाएंगे, तो पहला होता है हम लोग का, this is the process, already same chart is there, but in a circular form. You can see here idea generations start from here, screening, concept development, testing, marketing, business analysis, product development, marketing, and commercialization, and idea generation. This is a cycle to get the new process, new product process. Stage 1, idea generation. So idea generate मतलब क्या होता है? ऐसा सोया था, नींद में आया, वो आइडिया वर्क करने लगा, ऐसा नहीं है. We need to find out the idea, and that idea should be related to the customer need. न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो, अब न्यू प्रोडक्ट जब दिमाग में आएगा तब प्रोटोटाइप के बारे में बात करेंगे ना. तो पहले तो हम बात करेंगे कि न्यू आइडिया आया है, वो न्यू आइडिया कितना फिजिबल है, वो आइडिया कहाँ से आया है, कितना यूजेबल है, क्या कर सकते हैं. एवरीथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. तो आइडिया के सोर्सेस कहाँ से आ सकते हैं? यस, एनीवन? व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ आइडिया? इफ यू हैव इन आइडिया R&D डिपार्टमेंट, तो तुम क्या किसका सोर्सेज यूज करोगे कि भैया यहाँ से मुझे अच्छा आइडिया मिल सकता है, एंड दैट आइडिया इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू माय ओन इंडस्ट्री. मेरे जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड आइडिया वही मेरे काम को मिलेगा यहाँ से. यस, एनीवन? क्या रहेगा? यस, प्लीज. सर क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हो, मतलब कंफ्यूजिंग अभी था. समझ लो कि हाँ, अक्षय समझ लो तुम्हारा खुद का एक इंडस्ट्री है, ठीक है, और तुम ऑलरेडी इंडस्ट्री रन करे, तुम खुद एक R&D डिपार्टमेंट के हेड हो, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को छोड़ के तुमको ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ चालू करना चाहिए, या मेरा जो करंट प्रोडक्ट है उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करना है. तो वो इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके लिए सोर्सेज क्या यूज करोगे? कि ऐसा बोलते हैं ना, कुछ टिप्स है तो देना, कुछ आइडिया है तो देना, तो मैं उसके ऊपर वर्क करता हूँ. तो R&D डिपार्टमेंट क्या करेगा? अरे थोड़ा तो क्लू मिलेगा कि ये भाई हाँ ये रिक्वायरमेंट है. जैसे पहले अरे मोबाइल में सिर्फ पैटर्न लॉक रहता था, फिर नहीं, फिर और सिक्योरिटी इंप्रूव होना चाहिए, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, फिर और इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर तुम्हारा फेस स्कैनिंग ये हो गया. तो ये जो आ रहा है आइडियाज, फिर क्या हुआ? अरे बैक पैनल में, बैक में नहीं चाहिए, साइड में भी लगा सकते, इन बिल्ड तुम्हारा फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है. फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग दिस आइडियाज? सर उनके कॉम्पिटिटर्स को देख के ही मतलब आइडियाज आना चालू हो अरे जाता है.
जैसे कि सैमसंग का भी आप फोल्डिंग वाला फोन आ गया, तो अभी जो भी मोबाइल कंपनीज होगी वो उसको ही मतलब एज अ रेफरेंस अज्यूम करेगी और चालू करेगी अपना रिसर्च। देखो अभी बेटा सैमसंग इज स्टार्टेड देयर फोल्डिंग फोन, ओके, सो फोल्डिंग फोन का उनको कहाँ से आइडिया आया? तो सर वो वो कस्टमर से आइडिया, क्योंकि फोन बड़े हो गए थे तो और छोटे चाहिए थे, तो फोल्डिंग शायद वैसे आइडिया आया होगा। yes, 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 first source is a customer is a very big source of any new idea generation. Why customer is a big source of any idea generation? Because सबसे ज्यादा यूज तो वही करने वाले हैं। तुमने फोन दिया टेस्टिंग करके, और तुमने टेस्टिंग कितना किया? 1 महीना। वो तो उसको सालों यूज करने वाले हैं, सालों घसने वाले हैं, सालों 8-8 दिन का 6-6 8-8 घंटे यूज करने वाले हैं। So they can find out the more problem, more requirement on that particular product. कार है, कार में चलाने का तुमने टेस्टिंग करके 5 लोग ने टेस्टिंग करके ओके करके दे दिया। मैंने मेरा वाला टेस्टिंग कर लिया, तुमने तुम्हारा वाला टेस्टिंग कर लिया, तो दूसरे डिपार्टमेंट दूसरा वाला टेस्टिंग कर लिया। But the customer is going to test all the function together, and they are going to test in a long time. तो उनसे ज्यादा फेमिलियर, उनसे ज्यादा चीजें किसको समझेगी कि हाँ यार थोड़ा सा ऐसा होता ना तो और अच्छा होता यूज करने के लिए। क्यों देगा आइडिया? कस्टमर देगा। दूसरा, तुम्हारा जो मार्केटिंग टीम है वो भी आइडिया देगा। कस्टमर आएगा, अरे यार इसमें थोड़ा सा है, तुमने ये ऐसा प्रॉब्लम था, मैं लास्ट वाला तुम्हारा व्हीकल लेके गया था उसमें ये था। लेकिन अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फीडबैक मिल गया कस्टमर से, अब उसको वो कितना इफेक्टिवली अप्लाई कर सकता है, या मार्केट में बाकी सब कॉम्पिटिटर ने क्या किया है उससे अपने व्हीकल पे क्या फर्क पड़ रहा है। दे मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन ऑब्जर्व दिस एंड दे कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट, एंड दे विल ट्राई टू पास टू द R&D डिपार्टमेंट। ओके, सो R&D डिपार्टमेंट का जो एक्सटर्नल आइडिया सोर्स रहता है, दैट एक्सटर्नल आइडिया सोर्स इज नथिंग बट द कस्टमर्स। इंटरनल तो तुम्हारे जैसे कुछ न कुछ नया नया ट्राई करते रहेंगे, हाँ चलो नया हो गया, चलो कस्टमर को इंट्रोड्यूस कर देते। तो ओन R&D डिपार्टमेंट को तो जो रिसर्च से समझ में आ रहा है, जो रिसर्च से कर सकते हैं, दे आर डूइंग दैट, दैट इज इंटरनल सोर्सेज। बट द एक्सटर्नल सोर्स इज व्हाट? कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो तुम्हारे हैं, सप्लायर्स हैं, इस जो प्रोडक्ट को ज्यादा टाइम तक अपने पास रख रहे हैं, या जिनके पास ज्यादा टाइम, ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आते रहता है, दे कैन गिव दियर गुड सजेशन, गुड आइडियाज टू दियर कंपनी। इसलिए अभी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं अरे अपन तो इतना सामान यूज करते, इतना प्रोडक्ट यूज करते, कोई फीडबैक लेने नहीं आता, तो कौन से कस्टमर से फीडबैक लेते? व्हाट्स द चैनल टू टेक द फीडबैक? यस, एनीवन? कभी किया, कभी दिया है क्या फीडबैक तुमने किसी चीज को लेके? तुम्हारे मोबाइल से लेके, व्हीकल से लेके, किसी चीज को लेके तुमने दिया है क्या? सर कभी कभी वो यस सर। यूट्यूब की वीडियोस देखते तो उसमें स्टार्टिंग में पूछता है, मतलब सर्वे कंसिडर करता है, स्किप भी कर सकता है लेकिन करता है वैसे सर्वे। ओके, या एनीवन एल्स? अक्षित को छोड़ के कोई है और लेक्चर में या नहीं है? इधर आयुष भट्ट, आयुष भट्ट, आई एम यस ऑडिबल? सर। यस, पहले लेक्चर में आया था तो देखा मैंने, ज्वाइन टाइम पे किया था। ऋतिक, ऋतिक भाटिया, ऋतिक, ओके। नाउ सी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एवरी प्रोडक्ट कंपनी इज हैविंग देयर ओन कस्टमर केयर सर्विसेज, ओके। तो बहुत बार क्या होता है, कस्टमर खुद ही अपने जो प्रॉब्लम्स है ना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, वहां पे रिपोर्ट करते हैं, नोइंगली अननोइंगली दे आर रिपोर्टिंग दैट। जैसे आज मुझे मेरे फोन में ये प्रॉब्लम आया, सो वी हैव ऑप्शन टू विजिट द कस्टमर केयर जो उनका है वहां पे जाऊं, या मेरे को कुछ टेली, जैसे अभी इफ यू आर यूजिंग द आईफोन, तो आईफोन का क्या है कि इफ यू डोंट वांट टू गो दे विल असिस्ट यू ऑन द फोन, ओके। तो असिस्ट करेंगे फोन पे। आफ्टर असिस्टेंट, इफ यू आर नॉट एबल, दे आर नॉट, इफ दे आर नॉट एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, देन दे विल टेक योर अपॉइंटमेंट फ्रॉम दी कस्टमर केयर, जो भी तुम्हारे पास में रहेगा कस्टमर केयर, वहां का अपॉइंटमेंट लेंगे एंड दे विल शेड्यूल एंड यू कैन गो टू दैट टाइम एंड यू कैन
show your problem to that customer care. तो ये बड़ा चैनल है. जो small companies है, Chinese companies है, they are not doing that. If you're going to visit the Samsung is now in the decline phase, but Samsung customer care support and Apple customer care support, Dell customer care support, HP customer support, that customer care supports are very strong. So because of that, they are getting the good ideas. उनका आइडियाज R&D डिपार्टमेंट का एक स्ट्रॉन्ग है और एक कस्टमर सर्विस स्ट्रॉन्ग है. तो कस्टमर सर्विस से क्या होता है कि जब कस्टमर का ज्यादा प्रॉब्लम तुम अटेंड करते रहोगे तो यू विल गेट आइडिया कि यहाँ पे हमको फोकस करने की जरूरत है. वी नीड टू फोकस ओवर दिस. गेटिंग दिस पॉइंट? कितने लोगों को लगता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर इन्फ्लुएंस द कस्टमर? यस, एनीवन? इट इज पॉसिबल कि डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस कर सकता है कस्टमर को? सी ऑलवेज, अभी तो सब ऑनलाइन करने लगे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केटिंग टर्म इज नथिंग बट सर एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकता है ना? एडवर्टाइज नहीं बेटा. अभी देखो ना, तुम मोबाइल फोन लेने के लिए अभी शॉप में विजिट नहीं करते, ठीक है? शॉप में विजिट नहीं करते. तो जब भी यदि तुमने लाइफ में कभी शॉप में विजिट किया रहेगा या तुम बहुत क्लियर नहीं हो कि मुझे यही फोन खरीदना है. Nowadays everyone using the digital marketing से ऑलरेडी कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया हुआ रहता है. तो वो एकदम टारगेटेड कस्टमर रहते हैं कि भाई अपने को आया तो यही फोन लेने का है, अपने को आया तो यही कार लेने का है, अपने को आया तो ये लेने का है. अर्लियर व्हेन डिजिटल मार्केटिंग वाज नॉट देयर, डिजिटल मार्केटिंग था ही नहीं जब भी, तो क्या होता था? वी आर गोइंग टू द मोबाइल शॉप, वी आर गोइंग टू द कार सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास. वो एक्सप्लेन करता है, सर इसमें ये है, ये वाला मत लीजिए, ये ले लीजिए, इसमें ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ये 50,000 रुपये ज्यादा जाएगा या 2,000 एक्स्ट्रा है आपको, लेकिन इसमें ये बाद में अच्छा सर्विस भी मिल जाएगा, ये वो करके दे आर टोटली इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर. ओके, अब बाद में वो क्या बोलता था, ठीक है दे दो. तो वो चीजें जो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर के साथ करता है, वो ही सेम फीडबैक, सेम प्रॉपर आउटपुट दे कैन सेंड टू दिया दैट कंपनी के, भैया तुम्हारे प्रोडक्ट में ये फालतू आ रहा है इसलिए कस्टमर ले नहीं रहा है, तुम्हारा चाहिए ही नहीं प्रोडक्ट मुझे. देन कंपनी विल थिंक, अरे इसकी वजह से नहीं ले रहा है क्या, सो विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट. सो अगेन डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर नोइंगली अननोइंगली गिविंग द फीडबैक टू इंडस्ट्री कि तुम्हारे में तो ये नहीं है, वो वाला ये इतनी में ही दे रहा है, तो वो वाला लेगा कस्टमर की, तुम्हारा लेगा. तो फीडबैक मिला कस्टमर. तो दिस एक्सटर्नल फीडबैक हेल्प टू प्रोड्यूस द और मॉडिफाई द प्रोडक्ट. ओके, सो अगेन जो अभी मैंने टर्म यूज किया डिजिटल मार्केटिंग. ओके, 5 years बैक डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में सिर्फ 1 से 2% था. ओके, नाउ इट इज rapidly going up. It is expected in 2025 it is going to be 28%. It means what? Maximum job opportunities, maximum salaries, maximum thing will get from the digital marketing. There's a lots of terms are there digital marketing. Why I'm saying digital marketing, this is not a part of rapid prototyping. Just हम लोग बात करें कस्टमर एंड अदर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लाई के बात में, तो दैट इज वन चैनल. जो पहले ऑफलाइन होता था वो डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है. और आज किसी को किसी से पूछने का, किसी से जाके बात करने का इच्छा ही नहीं है. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, चलो भाई सर्च करते हैं, गूगल भाई को मिलते हैं, नहीं तो फेसबुक भाई है, नहीं तो व्हाट्सएप है, जस्ट गो विद दैट एंड यू आर जस्ट, हाँ ये वाला ही ठीक है, अपने लिए ये वाला ही चलेगा. ओके, सो दिस marketing, digital marketing is moving rapidly up, and definitely जिस हिसाब से इंटरनेट other factor is influencing our life, definitely full marketing strategy is going to be captured by this digital. अब उसमें तुम SEO कर रहे हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है तुम्हारा, या SMO है, ओके, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हो,
फिर बाद में गूगल एड्स करने वाले हो, फेसबुक एड्स एंड ये हो, देयर इज लॉट्स ऑफ कैटेगरीज इज देयर. डजंट इज मेरा मतलब ये नहीं है कि you need to go with the all, but if you have, if you want to focus on this field, you can just see the things कि मार्केट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज आने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग. एसईओ कितने लोग को पता था? यस, एनीवन हैविंग एनी आइडिया रिगार्डिंग द एसईओ? there Yes, sir. you have any idea regarding the SEO, SMO? So it's like if you are looking for something on Amazon or Flipkart and then searching for something on Google, so it will automatically give you advertisement for that particular thing. Yes. See, that is a search engine optimization. ये कौन करता है? डिजिटल मार्केटर करता है. जाके गूगल पे बोले भाई मुझे मोबाइल का ये खरीदना है, तो वो फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का 4-5 जगह का रेफरेंस लाके देता है. वो उनका ही क्यों लाके देता है? ऐसे तो बहुत लोग ने डाला है सेलिंग का, बिकॉज वो ऑप्टिमाइज किया हुआ है. सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी है. सोशल मीडिया पे तुम क्लिक करते हो, उससे रिलेटेड फिर आना चालू हो जाता है, फिर वो उसमें भी और फिल्टर करके तुमको देना चालू करता है. दिस इज अ डिजिटल मार्केटिंग. गूगल एड्स जो अभी नए बहुत सारे ऐप में तो ऐड ऐसे ऐप में भर भर के आते हैं, ये सब डिजिटल मार्केटिंग से बिलोंग करता है. दिस इज अ वेरी बिग फील्ड. यू कैन थिंक फॉर दैट. यू एटलीस्ट लर्न द थिंग्स कि क्या है, कैसे अफेक्ट करने वाला है. ओके, चलो. नेक्स्ट स्टेज ऑफ द NPD is the idea screening. So from the customer, from the retailer, from the R&D department, you will get the lots of their ideas. बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा. उसके बाद क्या? उसके बाद तो भाई उस आइडिया को फिल्टर करना पड़ेगा. सब आइडिया के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता. मेरे को लगना चाहिए कि हाँ ये आइडिया मेरे काम का है एंड इट विल वर्क. So I will concentrate on that idea and idea. So choosing of that idea is known as the idea screening. So if you're going to see the all ideas and you will calculate the plus minus and you will filter the from the number of ideas, you will calculate 1 and 2, and that idea is going to be a go for this. The product development cost increases in the latest stage, so poor idea must be dropped. यदि सब पे काम करने लगा तो पैसा ही जाने लगेगा. ओके, सो वी नीड टू ड्रॉप दिस वन. Idea are evaluated against the criteria, most are eliminated. Okay, and just a minute. So in that stage we are just removing the idea and we are trying to find out the good idea जो मेरे को work करे. Okay, next one is nothing but the concept development and testing. जो भी तुमने आइडिया फाइंड आउट किया है, what we need to do, we need to work on that and we need to create the all the details and future में क्या क्या हो सकता है, कैसे करना है, everything we need to find out that idea and we need to work on that. Okay, so concept testing, ask target consumer and evaluate the product concept. अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी हम कोई आइडिया क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने अभी सिंपल एक मोबाइल का आइडिया तुमको दिया, if you are going to produce ये मोबाइल. अब मोबाइल से क्या हुआ, किसी तुमने एक मोबाइल बना दिया, हाँ मोबाइल का रिक्वायरमेंट मोबाइल कस्टमर को है, बट इफ यू आर मेकिंग दी वन वेरिएंट, एक ही टाइप का बोला है, तो क्या होगा, वही रेंज वाला कस्टमर तुम टारगेट कर पाओ. देखिए उसमें हम लोग जब वेराइटी डाल देते कि भाई इसमें बेस वेरिएंट भी है, मिडिल वेरिएंट भी है, हायर वेरिएंट भी है, तो जिसको वो मोबाइल चाहिए लेकिन बजट इज लेस, सो दे कैन गो विद देयर बेस वेरिएंट. जिसको लग्जरियस चाहिए, जैसे अभी तुम मारुति का देखोगे तो तुमको LXi, WXi, YXi, ZXi तीनों वेरिएंट आता है उसमें भी. सो व्हाई दे आर मेकिंग डू, अंदर का तो सबका इंजन ट्रांसमिशन सिस्टम है भी सेम. सो व्हाई दे आर कैटेगराइजिंग इनटू दिस 3. उन्होंने विजन किया, अरे ये बना दिया, इतना कॉस्ट हो जाएगा तो यही कस्टमर टारगेट होगा,
यदि हमने लोअर बनाया तो हायर वाला कस्टमर नहीं मिलेगा, हायर वाला बना दिया, लोअर बना दिया तो एक जो मिडल वाला है वो कहीं चले जाएगा। अब उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है कि लोअर में जाऊं या हायर में जाऊं। लोअर में जाना उसको पसंद नहीं रहेगा क्योंकि अरे मैं तो मिडल में लोअर में, हायर जाने का बजट नहीं है, सो दे विल गो विद द लोअर मिडल। सो सच टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड थिंग्स इज स्टार्ट, और फिर स्टार्ट करते हैं कस्टमर का टारगेट कि भैया ये सब बना के देखूंगा, फिर कस्टमर को सोचूंगा उसके बारे में। दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कंटिन्यूअसली बोथ इज गोइंग टू बी पैरेलल। मैं ये बनाने वाला हूँ, कितने लोग का कस्टमर मिलेंगे, ये बनाऊंगा, कितना रिक्वायरमेंट है मार्केट, बोथ आर इन द सेम लेन, पैरेलल लेन में चलते रहेंगे। ओके, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड डेवलपमेंट। Target the market, product positioning and sales share and profit goals for the first few years. Product price, distribution, marketing budget for the first year. Long run sale profit goals and marketing strategies. This, if you're going to see all the three statements, all three statements are related to sales, profit. Sales, profit. Sales, profit. अभी धीरूभाई अंबानी का ही ले लो, जियो मोबाइल, Jio SIM cards, Jio facility, they have started with a very cheap price. Few years. Means तुम तो ऐसा ही बोल सकते थे 2 साल 1.5 साल तो फ्री में। ओके, सो टारगेट करने के लिए मार्केट में, क्योंकि यू नीड टू ब्रेक दियर चेन। मुझे ये चेन ऑलरेडी है, वी नीड टू ब्रेक एंड वी नीड टू मूव इन। ओके, वो चेन का पार्ट बनना है तो मुझे चेन को ब्रेक करके ही उसका पार्ट बन सकता हूँ, क्योंकि चेन is a close, we need to insert in that cycle. So how it is possible? So आजकल तुम if you are going to use the online Swiggy, Zomato, बहुत सारा तुम्हारा फूड डिलीवरी, वेजिटेबल डिलीवरीज जो वेबसाइट्स हैं, if you are going to see, बोलोगे यार इतना ऑफर कहाँ से देते हैं, but if you are going to see their annual chart, then you can find out कि इतना सारा losses है उनको। But why they are doing this way? पेटीएम जब भी आया था तो हर चीज पे कैशबैक देता है, बट nowadays they are not giving. They have targeted 100 people. 100 में से जब तक कैशबैक मिल जाता तो 100 लोग ने इसमें यूज किया. Now only 40 to 50 people are only using Paytm. So उनका प्लानिंग 100 को लेके आगे चलने का नहीं था, बट मार्केट में आके वो 50 लोग को भी जमा करके साथ में लेके चलना इज अ बिग टास्क. So initially they have given their sum, they have spent their sum, and they have went through their low price with the few years with the offers and other parameters. Now they are earning phase. They are trying to earn on that. Again, यहाँ पे Paytm का जो strategy था, that is a failure strategy. If you are going to see this case study on the Paytm, then you can find out कि क्या failure हुआ. Initial their concept, their thing was very strong. बाद में फेल होने लगा बिकॉज कॉम्पिटिटर बहुत घुस गए. ये एक्सपेक्टेशन उनका इतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं था. इसकी वजह से क्या हो गया, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम. वॉलेट एंड यूपीआई के बहुत सारे ऐप अवेलेबल हो गए एंड पीपल आर गेटिंग डिफरेंट ऑप्शन. सो इसकी वजह से पेटीएम इज नाउ अफेक्टेड. सो नाउ अगेन पेटीएम इज डाइवर्टेड टू अदर थिंग. सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी कि भैया एक डायरेक्शन में मैंने बनाया वही चलते रहूंगा तो ना चले. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब भी किया है तो उसके रूट्स भी मुझे डिफाइन करने हैं पहले, उसके बाद ही कि लॉन्ग रन में कब तक लेके जाना है इसको, बीच बीच में प्रॉफिट क्या रहेगा तब तक मुझे रन करना है. पता चला लॉस मेकिंग है और मैंने लॉन्ग प्लान बनाया तो लास्ट तक लेके जाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना है. सो एवरीथिंग मार्केट कहाँ पे करना है उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन ड्यूरिंग द एनपीडी ओनली. बना के मैन्युफैक्चर करके नहीं करते. अब यहाँ पे तुम्हारा product development and business analysis both will come. Okay, sales कितना होने वाला है, cost and product projection, everything is going to be done. अब business analysis होने के बाद कि भैया कितना सेल हो सकता है, कितना cost हो सकता है, profit कितना होएगा, ये सब चीजें करने के बाद भैया हमारे जैसे थोड़ी है, इंडस्ट्रीज हैविंग देयर ओन कल्चर टू वर्क. कोई भी चीज से मैं ये बिल्डिंग बनाने वाला, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करोगे, so if I am going to occupy this much place, I am going to
build this much flats. So इससे मुझे कितना सेल्स होएगा, कितना प्रॉफिट होएगा, एंड व्हाट रेट आई नीड टू सेंड, मिनिमम रेट व्हाट वुड बी. So ये सब चीजें we need to calculate initially without launching that product, without launching that building. So everything is calculated, already calculated. So वो सब चीजें business analysis से होता है, and this is a part of new product. बनाया, अच्छा लगा, launch कर देंगे, customer खरीद लेगा. It is not like that. What is the profit? That should be done. Once if you are done with the business analysis, now you will concentrate on your product. अब इतना प्रॉफिट आ जाएगा, अब मुझे प्रोडक्ट को अच्छे से करना है. सो आई विल, जो भी मेरा आइडिया है, आई विल कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट प्रोटोटाइप. व्हाई यू नीड टू डू दैट? इतना बड़ा प्लानिंग तो कर लिया, लेकिन जो बनाने वाला, वो बन के दिखने वाला कैसा है, वो फंक्शनिंग कैसे रहने वाला है. सो वी आर यूजिंग वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग. जो तुम कैड, ऑटो कैड, ये सब पे यूज, ऑटो सॉलिडवर्क्स वगैरह पे ये सब करते हो, सब वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग, virtual prototype. Now additive manufacturing, you can use the additive manufacturing and you can build the actual prototype by using 3D machine, fusion diffusion method, other जो तुम्हारा CGA है, उससे you can make the prototype, and with on that prototype you can do the proper analysis. We are trying to make the prototype कि भैया वो वर्क करता रहे. यदि छोटा स्मॉल स्केल में बनाओगे प्रोटोटाइप वर्क करता हुआ, तो विल गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दैट. अब वो इंफॉर्मेशन किसके काम में आएगा? दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी हेल्प देयर डिजाइनर, मार्केटर. ये दोनों को सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला प्रोटोटाइप. यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम लगा कुछ, तो डिजाइनर कैन रीवर्क ऑन दैट. आदि अच्छा है, बाकी सब चीजें मार्केटर कैन प्लान टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए. फिर ये बोलता है ये लीक हो गया, ये लीक होके आ गया प्रोडक्ट, ऐसा आने वाला. दैट इज नॉट अ लीक. वो लीक नहीं हुआ, लीक किया गया है. पब्लिक के दिमाग में ये भी रहे कि ये ऐसा कुछ तो, ये फोन आने वाला है, ऐसा कुछ तो कार आने वाला है, यदि मैं आज परचेस करने वाला तो मुझे रुकना चाहिए. सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी. लोग बोलते हैं लीक हुआ है इंफॉर्मेशन. लीक हुआ मींस व्हाट? इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना सब कुछ है और लीक हो जा रहा है. और हर फोन का लीक हो जाता है, ऐसा नहीं कि 100 में से एक का लीक हुआ, हर फोन का लीक हो जाता है. कोई भी बड़ा आने वाला है वो लीक हो जाता है. So it means what? This is what strategy. So everything is going to be a done analysis on the prototyping under the product development. So it's a product development बनाएंगे, इसको prototype बनाएंगे, they will do the testing. यदि नहीं है तो they will rework on that and उसके according they will do their work. फिर next is nothing but the test marketing. Standard test market and control test market. Both the simulated test markets and जो भी तुम्हारा उस पे वो प्रोडक्ट है, उसको हमको जितने सारे के टेस्टिंग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टू मार्केट सर्वे, मार्केट रिलेटेड, मार्केट से मैच करके तुम्हारा वो जो टेस्टिंग एंड दिस वन प्रोडक्ट टेस्टिंग रिलेटेड है, दैट इज गोइंग टू बी वर्क डन ओवर हियर. प्रोडक्ट का डेवलपमेंट टेस्टिंग इज गोइंग टू बी डन ओवर हियर. दिस टेस्टिंग्स आर बिलोंग टू द मार्केटिंग. ओके, सो विल हाउ दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, हाउ दे आर गोइंग टू बी वर्क, उससे आउटपुट क्या आएगा, स्लोली दे विल एनालाइज ऑन द मार्केट. एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज नथिंग बट सब कुछ सक्सेसफुली चला तो तुम्हारा प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ कमर्शियलाइज. योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ कमर्शियलाइज एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू द मार्केट एंड इट इज गोइंग टू बी वर्क. सो दिस पूरे साइकिल में टेक्निकली ओनली प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द रैपिड प्रोटोटाइपिंग. कि भैया यहाँ पे हमको प्रोडक्ट बनाना है और उसको टेस्ट करना है. लेकिन वो मेरा 6 पार्ट, उसके पहले भी 4 पार्ट है, उसके बाद भी 2 पार्ट. तो जब भी मैं R&D डिपार्टमेंट बोलता हूँ तो R&D डिपार्टमेंट डजंट मीन कि बना दो अच्छे से, टेस्ट करके बोलते भाई बस है, ऐसा नहीं. उसके आगे पीछे भी इज वर्क बाय द R&D डिपार्टमेंट. जैसे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो कितना मार्केट कैप्चर करेगा, कितना करेगा, एवरीथिंग. ये बोलते हैं ना, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आई नीड ऑल द इन्फॉर्मेशन. ऑल द इन्फॉर्मेशन मतलब ये प्रोडक्ट बनाओगे, कितना बिकेगा, कितना सेल एक्सपेक्टेड है, कौन से कैप्चर मार्केट होने, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन थ्रू दैट रिपोर्ट. सो maybe you'll get the small question to explain the NPD, that is a new product
development process. So that new product development process is containing total 8 stages, and in this 8 stages में ये सब तुम्हारा आएगा. In next lecture, I will show you a one small video on this product development process, and after that we'll see the case studies on the Titan, Pepsi Cola, and how they have implemented this NPD and how they have increased their financial growth in industry. Okay, so after this you can see a Titan ka hai, and after that you can go with the share market everything and Pepsi Cola. This two industry के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुआ. Now all term is going to be related to only NPD. तो फर्स्ट मॉडल जो है अपना वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ही डिपेंड है. इसमें मेरा रैपिड प्रोटोटाइपिंग का ज्यादा कुछ रोल नहीं आने वाला है. ओके, सो I'm going to stop over here. If you have any doubt, then you can ask. Yes, anyone? कितने लोग हो मीटिंग में? Yeah, 19. Yes, anyone having any doubt? No, sir. Yeah. After this, you just make the group of 4 students. Okay. So before that is your choice. I'm not going to make the group. जिन्होंने भी IPD RPD ऑप्ट किया है सबको बोलो 4 का ग्रुप बनाने के लिए. ग्रुप बनाने के बाद जैसे थोड़ा सा नॉर्मल होएगा, हम लोग इसमें 2 चीजें करने वाले हैं आरपीडी में. फर्स्ट वन विल गो टू दी आरपीडी लैबोरेटरी नहीं है, बट विल गो टू दी आरपीडी लैब. तो सबको साथ में नहीं, 2-2 3-3 बैच को आई विल कॉल यू. इफ यू आर एबल टू कम देन यू कैन कम एंड विल शो यू दी डिफरेंट 3D मशीन जो अपने पास 3-4 है. नाउ डीजे संगीव में भी एक आया है, एंड ऑलरेडी न्यू बिल्डिंग में भी ऑलरेडी वी हैव अ 3D printer, so you can see that printer. And 4 का ग्रुप बनाना है और तुमको रिसर्च लेटेस्ट रिसर्च पेपर के ऊपर केस स्टडी पे वर्क करना है. ओके, सो इन नेक्स्ट सैटरडे लेक्चर आई विल ब्रीफ यू इन ए डिटेल, बट बिफोर दैट यू नीड टू मेक द ग्रुप ऑफ 4 पीपल. दैट इज योर चॉइस कि कैसे 4 को बना रहे हो, बट दिस प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन इन दिस 2-3 वीक्स. ओके, तो तुम्हारे वो टेक्निकल पेपर कहाँ से लेना है, कौन सा लेना है, एवरीथिंग विल डिस्कस and will form them. Okay, those are not attending the lecture, just pass on the message. Okay, anyone is having a doubt? Yes, किसी कुछ doubt है? Okay, चलो then bye everyone, enjoy the week.